Good morning, everyone. I hope you all have completed your chapter 2 and understood it well and learned all the identities as well, right? So, in between the class, I'll keep on asking the identities from you all. And at present, we are starting with the questions, with extra questions of this chapter. I have written few questions for you. When you will do it, then I'll write few more questions. Your first question is, if x plus 1 is a factor of 3x square minus kx, then find k. You have to tell me the answer in your chat box. Umang, do corrections in your question, in your solution. Yes, Aryan, now Umang has also given correct answer. Harsh, correct answer. What you will put in this question, we will put x is equal to -1. I think you wrote -1 for this. Umang, x को आप -1 put करेंगे and you will put this to be equal to 0. X को -1, 3 multiply -1 square minus k multiply -1, this is equal to 0. और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे then you will get the value of k to be equal to -3. ठीक है, चलिए, come to the next question now. I hope it is clear to you. जिसको नहीं है please raise the hand. Okay, चलिए, let me come to the next question. If x plus y is 9 and xy is equal to 20, you have to find the value of x square plus y square. बट एक बारी आप लोग ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, so that you can do the questions if you are not able to do it right now. चलिए, erasing the first question. X square plus y square. Yes, Aryan, ठीक है आपका. Yashvi, now please check where you have done the mistake, which is the correct answer. No, Ansh, this is not the answer. Umang, correct. चलिए, now it's my turn to do the question. रोशनी, not the right answer. चलिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में x plus y, xy and this is x square plus y square. श्रेया, ठीक नहीं है आपका आंसर. सक्षम करेक्ट है. What we are going to do is x plus y is given to you equal to 9 और उसके बाद आप करेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका आइडेंटिटी में आता है, या तो x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आता है या x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आता है. So we are going to take the square on both the sides. What you will get, x square, identity लगा रही हूँ a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. So x square plus y square plus 2xy is equal to 9 square is 81. Now we are going to put the values whatsoever the value is given to us. x plus y आपका, चलिए ये तो आपने कर दिया. x y आपको 20 पुट करना है इसमें. xy you have to put 20 and you have to find out the value of x square plus y square. ठीक है, इसमें आप xy की वैल्यू पुट कर दो. x square plus y square plus 2 multiply the value is 20 is equal to 81. 2 multiply 20 is 40. Shift this 40 on the other side. 81 minus 40, this is equal to x square plus y square and 80 minus 41 is 41. ठीक है, श्रेया, नाउ करेक्ट आंसर. वैभव, ठीक है. आई होप यू इट इज क्लियर टू यू. नहीं समझ में आया देन प्लीज रेज द हैंड. आप हैंड रेज कर सकते हैं so that I can explain it again. अंजलि, is the question clear to you? अंजलि, question is clear? Yes, नहीं आया. Okay, few students are there.
those who are raising, so एक बार दोबारा से सुन लेते हैं। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ना 2-3 तरह से आते हैं। you just have to identify कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। आपको ये वैल्यूज गिवन है, x plus y is equal to 9 and we have to find out x square plus y square। ठीक है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। देखो कहाँ से आपको मिलती जुलती आइडेंटिटी लग रही है, x plus y, xy, x square plus y square, ये सारी चीजें कौन सी आइडेंटिटी में आती हैं? ये हमारी आती हैं x plus y होल स्क्वायर में। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो मैं इसमें जो जो वैल्यूज मुझे गिवन है मैं उनकी वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। x प्लस y मुझे गिवन है 9, सो आई एम राइटिंग हियर 9 और ये इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके ठीक है अंजलि, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई कितना है 20, सो वी विल राइट हियर 20, राइट। अब उसके बाद 9 स्क्वायर इज 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू प्लस 40। ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए तो इस 40 को मैं इधर शिफ्ट करूंगी, सो आई विल गेट 81 माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 81 माइनस 40 हो गया 41, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ एनी प्रॉब्लम? नहीं आया तो फिर से यू कैन रेज द हैंड, अगेन आई विल एक्सप्लेन। ओके, एक बार फिर समझा दो। हाँ जी फिर से सुन लो। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ आइडेंटिटी पता लगनी चाहिए और आपका काम हो जाता है, राइट। इसमें मैं ये कह रही हूँ ये एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपको आइडेंटिटी पता है जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं, वो है आपकी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने करी है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो, हमें गिवन नहीं है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, राइट। और x प्लस वाई मेरे पास है 9, तो मैंने कर दिया 9 का स्क्वायर, और 9 स्क्वायर होता है 81। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज, इसकी वैल्यू नहीं है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई मेरे पास है 20, तो एक्स वाई की जगह मैंने लिख दिया 20, 20 टू 40। ठीक है, 40 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और इधर मेरे पास क्या है 81। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसके साथ वाली टर्म्स को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे। ये 40 मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 81 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वल है तो आप इस तरह से इंटरचेंज करके लिख सकते हो कि मैंने लेफ्ट वाला राइट में लिख दिया, राइट वाला लेफ्ट में लिख दिया। नाउ 81 माइनस 40 इज 41, तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 41। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू इवेल्युएट। देखो यहाँ पर इवेल्युएट कहते ही आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे। द क्वेश्चन इज 185 मल्टीप्लाई 185 माइनस 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी हो गई? मुझे आइडेंटिटी लिख के बोलो। यू आर सेंडिंग मी द आंसर्स, आइडेंटिटी बता दो एक बार। No, Yashvi. Yes, Vichitra. This is a square minus b square. You can write it 185 square minus 15 square. ठीक है, which is equal to a square minus b square, और a square minus b square होता है a plus b multiply a minus b. A square minus b square is a plus b and a minus b, right? So we will write 185 square minus say 15 square is equal to 185 plus 15 multiply 185 minus 15, and 185 plus 15 हो जाएगा आपका 200 multiply 185 minus 15 170। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, so your answer will be 34,000, right? I hope those who are giving wrong answers they have
seen how the answer is coming? Any doubt? Please raise the hand. I think it is clear to everyone now. Okay. Come to the next question then. Your next question is show that 2x plus 1 is a factor of this polynomial 2x cube minus 11x square minus 4x plus 1. जिसका हो गया लिख के भेजो. Yes, Aryan has written the complete solution. First, put 2x plus 1 is equal to 0. Then put the value of x is equal to minus 1 by 2 in the polynomial. And by solving, answer will be 0. Very good. आपने ये चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है. So you will take this to be equal to 0. यहाँ से आपकी 2x is equal to minus 1. That means x is equal to minus 1 upon 2. That means we have to put x is equal to minus 1 upon 2 in the given polynomial. So 2x cube minus 11x square minus 4x plus 1. इसमें जहां जहां पर भी आपका x आ रहा है वहां पर आप x की जगह पे minus 1 upon 2 put करो. And if the answer comes out to be 0, then it will be the solution, otherwise not. ठीक है. Now ये cube है आपका, power is odd, तो negative आपका as it is रहेगा. minus 2 multiply 1 upon 2 का cube हो गया आपका 1 upon 8, right? minus 11 और ये आपका minus का square है, so it will be positive. multiply 1 upon 4 हो जाएगा. square है 2 का square 4 minus minus plus 4 multiply 1 upon 2. इसको आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पावर नहीं है. यहाँ पर पावर थी इसलिए आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, राइट? सो प्लस 4 प्लस 1. अब आप इसको कैंसिल कर दो. दिस now you are getting minus 1 upon 4 minus 11 upon 4 plus 4 plus 1 is 5. And minus 1 upon 4 minus 11 upon 4, it will be minus 12 upon 4 plus 5. Is it coming out to be the factor? It is not the factor because minus 3 plus 5 you are getting the answer to be 2. ठीक है, तो ये आपका अगर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, बट यहाँ पर 0 नहीं आया है, so it is not the factor. ठीक है, okay, clear? Shall we continue with the next? Yes. मैम एक बार फिर बता दो. हाँ जी बिल्कुल सुन लो बेटा. जो आपने चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है उसको हम पुट कर देते हैं 0. उसको आपने 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली. x की वैल्यू आपकी आई है -1. ये आपने इधर शिफ्ट किया -1 and 2 is shifted here, so -1 upon 2. इसको -1 upon 2 को आप इसमें जहां जहां पर भी आपका x आ रहा है वहां पर पुट करोगे. x -1 upon 2 क्यूब 11 -1 upon 2 स्क्वायर minus 4 multiply minus 1 upon 2. Yes. मैम आपने 4 का स्क्वायर Yes. क्यों लिया है? This will be 2. यहाँ पर आपका थोड़ा सा एरर है. It will be 4 multiply minus 1 upon 2 plus 1 आपकी वैल्यू एज इट इज. ये आपने कैंसिल किया. 2 2s are 4. तो यहाँ से अब आपका है गया 2 माइनस आपका ये आएगा क्योंकि माइनस का क्यूब है, ऑड पावर है, so it will be 1 upon 8. 11 multiply 1 upon 4 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर है. ये वाला नेगेटिव आपका खत्म हो गया, सिर्फ ये नेगेटिव रह गया. एंड यहाँ से आपने इसको कैंसिल किया है. माइनस माइनस प्लस दिस 2 प्लस 1, राइट? नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी -1 upon 4 minus 11 upon 4 plus 3. ठीक है, एंड नाउ इट विल बी -12 by 4 plus 3. और इसको आप कैंसिल कर रहे हो. -3 plus 3 is 0. ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, सो ये इसका फैक्टर होगा, राइट? ओके, राइट. टेलिंग द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. -5 should be subtracted. Where -5 should be subtracted? Vichitra, please raise the hand. Vichitra, please raise your hand. हाँ जी बोलो विचित्र.
मैम फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दिया। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ जी, ईशान, क्लियर ना दिस क्वेश्चन? श्रेया, डू यू हैव टू से समथिंग? मेरे को ही डांटती रहती है। Okay, coming to the next question. In the next question, what should be subtracted from this polynomial to make it divisible by x plus 1? How we will do this? इस polynomial में से क्या माइनस करूं कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? क्या करेंगे? Aryan has written, divide this polynomial by x plus 1 and subtract the remainder. ये नहीं है, okay. We will divide it by x plus 1. बेटा एक चीज बताओ, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपको जो मेथड फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है जो आपको कम टाइम लगे, बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव ओनली 3 आवर्स, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं व्हिच आर टाइम कंज्यूमिंग, और कहीं भी आपने कभी गलती करी तो आप वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखने में आपका पूरा टाइम जाता है। सो यू नीड टू ऑन द टाइम आल्सो। इसका और छोटा तरीका क्या हो सकता है? एक तो तरीका ये है कि आप इसको इससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर दो, उसको कहते हैं ये माइनस करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है? दैट मींस यस, रिमाइंडर थ्योरम विल अप्लाई। मैम इसका आंसर -5 है। आगे चेक कर देते हैं। वी हैव टू पुट -5, ओके, लेट वी टेक x plus 1 is equal to 0, तो आपका x आ गया -1. Now we are going to put x is equal to -1 in this, and you will get 3x or 4 minus 4x square plus 3x minus 1. I have to put x is equal to -1, so 3 multiply -1 to the power 4 minus 4 multiply -1 square plus 3 multiply -1 will get 3, because even part here also the power is even, so 4 up as this plus minus -3 minus 1, so 3 and 3 they will get cancelled and you will get -5. So we are saying -5 should be subtracted, क्योंकि remainder ही और minus किया जाए तो आपके जो भी आपका dividend है that is divisible by that will become divisible by the divisor, right? और मैं अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड मॉडिफिकेशन करती हूँ। यस क्रिश, क्रिश, I think now it is clear. क्रिश, ओके, चलिए मैम सेकंड चैप्टर का डिवीजन मेथड सिखा दो। ओके, करवा देते हैं। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आई एम सेइंग दैट आई एम डूइंग लिटिल चेंज इन द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। Instead of subtracted, I write here what should be added to, and what will be your answer? What should be added to this polynomial to make it divisible by this? Yes, Umang, Yashvi, correct answer. विचित्र बिल्कुल ठीक है। All of you have given correct answer. What we have to do, जब आपसे पूछा जाता है क्या ऐड किया जाए, तो जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा होता है उसका साइन चेंज कर दो, वी विल से कि ये ऐड कर दो, ठीक है? अगर आप इसमें जो भी क्वेश्चन में अगर एडेड आ जाता है, व्हाट शुड बी एडेड, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 10th क्लास में अगर मैं कहूँ तो मुश्किल आ जाता है, 9th में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ जाते हैं कि ये ऐड किया जाए, बट रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और जो भी आपका रिमाइंडर अगर एडेड में आता है देन यू हैव टू चेंज द
Yes. Now clear? Now clear everything? Now also there is the problem. चलिए, I think everything is okay now, and you have understood the question. Now ईशान is saying कि मैम डिवीजन मेथड करवा दो, तो इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से भी करवा देते हैं एक बार. 3x power 4 minus 4x square plus 3x minus 1, and we have to divide by x plus 1, right? अभी लेते हैं आपका डाउट भी बेटा 2.4 का. x प्लस 1 से हमें इसको डिवाइड करना है. इसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल करने की कोशिश करते हो. उसके लिए आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 को आपने 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x को आपको x पावर 4 बनाना है तो इसमें x क्यूब और लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर्स तो ऐड होती हैं. वेरिएबल्स के लिए हमें सिर्फ पावर डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, और नंबर्स के लिए हमें उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि हम क्या लें, राइट. अगर यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 होता तो 3 4 सा 12 होता, फिर हम यहाँ पर 4 ले लेते, राइट. बट नाउ हियर दिस इज 3x क्यूब मल्टीप्लाई x, तो आपके के इक्वल आ जाएगा. सो वी विल टेक हियर 3x क्यूब. अब ये जो आपने लिया है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है और लाइक टर्म अंडर लाइक टर्म लिखनी है. सो 3x क्यूब मल्टीप्लाई विल बी 3x टू द पावर 4. 3x क्यूब मल्टीप्लाई 1 विल बी 3x क्यूब. बट यहाँ पर मेरे पास क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे जो भी आपकी पावर बीच में मिसिंग है उसके लिए बीच में स्पेस छोड़ देंगे. सो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ प्लस 3x क्यूब. उसके बाद करना है आपने इसको माइनस. माइनस करने के लिए आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे. फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपने खुद ही उसे सेम बनाया है, राइट. नेक्स्ट इज माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर plus 3x minus 1. मैंने बाकी टर्म्स लिखी है as it is. Now again I have to make the first term to be equal. तो इसके साथ 1 है, इसके साथ -3 है, तो मुझे इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x क्यूब है, इधर x है, तो मुझे लेना पड़ेगा x की पावर 2, x स्क्वायर लेना पड़ेगा. Now I am taking -3x स्क्वायर. अब आपको यहाँ लेना पड़ेगा -3x स्क्वायर. इस टर्म से आप फिर से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. minus 3x square into x will be minus 3x cube. Minus 3x square into 1 will be minus 3x square. ठीक है, फिर से साइन चेंज, ये आपकी टर्म कैंसिल, और उसके बाद आपके पास रह गया 4x स्क्वायर. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज माइनस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, राइट. नाउ x को माइनस x स्क्वायर बनाना है. x को माइनस x स्क्वायर बनाने के लिए एक तो माइनस साइन चाहिए आपको, दूसरा एक x और चाहिए, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट ओवर माइनस x. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 इज माइनस एक्स. एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म. फिर से साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट, 3x प्लस x 4x माइनस 1. अब आपको x को 4x बनाना है, दैट मींस यू विल हैव टू टेक 4 ओवर देयर प्लस 4. मेरा यहाँ पर बचा है 4x माइनस 1, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको. एंड 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई x 4x प्लस 4. और फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, फिर से साइन चेंज करते हैं, 4 से हम कैंसिल, एंड -1 माइनस 4 विल बी -5. ठीक है, उसके आगे आप नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप करते हो तब आपके रिमाइंडर की वेरिएबल की पावर इसकी वेरिएबल की पावर से कम नहीं आ सकती. खैर, वेरिएबल पावर इज 1, x की पावर 1 है, यहाँ पर आपका x नहीं है, दैट मींस द पावर ऑफ x इज 0. छोटी पावर आ गई तो उसके आगे आप नहीं कर सकते, दैट मींस यू विल हैव टू स्टॉप योर डिवीजन ओवर देयर. क्लियर नाउ? Ishan, you will have to do division again and again so that it can be clear to you. मैम समझ नहीं आया. कहाँ से बताऊं? कहाँ से बताऊं बेटा?
स्टार्टिंग से यस स्टार्टिंग। अब मैं नहीं करूंगी, अब आप मुझे बताते जाना। 3x⁴ माइनस 4x³ आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना है। ये 1 है, इधर 3 है। 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 को 3 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 को? मैम 3 से। ईशान हाँ जी, तो आपने 3 ले लिया। ये इधर x⁴ है, किससे मल्टीप्लाई करोगे x को x⁴ बनाने के लिए? 3 से। x⁴ से। ठीक है, अब ये टर्म जब आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपको ये पता चल गया विच टर्म यू हैव टू टेक इन द क्वेश्चन। इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x³ को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएगी, 3x⁴ हो जाएगा, हो जाएगा। यस यस मैम। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, 3x³ मल्टीप्लाई 1, 3x³ आ जाएगा। 3x³। बट मेरे पास क्यूब वाली टर्म ऊपर नहीं है, तो मुझे इसको यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब वाली टर्म आप जब क्वेश्चन करोगे बीच में स्पेस छोड़ोगे, क्योंकि आपके पास 4 के बाद 2 पावर आ रही है, 3 पावर नहीं है। सो यू लीव द स्पेस फॉर द टर्म विद द स्पेस विद द पावर 3। उस करते हो माइनस, माइनस करने के लिए आपने साइन चेंज कर दिया, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन। अब आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? माइनस 3x। बाकी सारी टर्म्स आपकी एज इट इज। ठीक है, फिर से आपने इनके इक्वल बनाना। 1 माइनस x³ स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसको इन दोनों ये स्टेप आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, करके देख लेना डिवीजन, और अगर नहीं आती है तो एक बार फिर व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना, वीडियो कॉल, वहां पे फिर Yes, who was saying that there is a problem in 2.4 exercise? Please raise the hand. नहीं, सारे डिवीजन सम्स पहले वाले मेथड से नहीं हो सकते। रीजन, जिस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ओनली ओवर देयर वी कैन अप्लाई दैट मेथड। अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है मैम रोशनी? वो मैम एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट स्टेप आता है x+1 आगे कैसे? रोशनी एक बार दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। मैम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट में लास्ट स्टेप आता है। हाँ जी, लास्ट स्टेप